seulement pour les bobos. Nous on vient dans nos mambo. Mon ami, si tu as le niveau, rejoins-nous pour t'enjailler. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Ah ouais, Magic System. Toujours nous. Ah, ça change pas. Ah ouais. Ah, Shawky avec Red One. Est-ce que ça marche? Ça va pas. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, c'est ready, wow, wow, wow. On vient du ghetto pour aller plus haut. Avec les magiciens, oh, oh, oh. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? At Venice, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monster's running right inside of me. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. I'm faded. So lost. I'm faded. These shallow waters never met what I needed. I'm letting go, a deeper dive, eternal silence of the sea. I'm breathing alive. Where are you now? Assalamu alaikum everyone. वालेकुम अस्सलाम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम ब्रो। वालेकुम अस्सलाम।
आई गेस किसी को थोड़ी सी अपनी पावर्स अप्लाई करनी पड़ेंगी यहाँ पे. So guys, welcome to the system. और I hope all are fresh at the moment. हम लोग ऐसे करते हैं before we take a start. There must be many people जिनका first Sunday system होगा, second Sunday system होगा. They are new as well. So let's try to set one of the best examples to everybody. ठीक है कि ताकि पता चले कि हम as a team किस तरह से कंडक्ट करते हैं, किस तरह सीकिंग जोन में रह के अपनी लर्निंग्स भी ले रहे होते हैं. और उसके लिए हम ये करते हैं कि सबसे पहले ग्राउंड रूल्स सेट कर लेते हैं. ठीक है. सो गाइस, जो ग्राउंड रूल्स मैं अभी सेट करूंगी ना आपके साथ, आपने ये करना है कि इनको फॉर नेक्स्ट गुड 1.5 आवर्स जब तक सिस्टम कैरी ऑन हो रहा है, आपने उन ग्राउंड रूल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. ठीक है. बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प यू. Today's session is something that is very important, and it is going to help you out in reaching certain benchmarks in the business in longer run as well as shorter run. So उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी लर्निंग्स को किसी भी पॉइंट इन टाइम पे मिस ना करें, और ग्राउंड रूल्स जो सेट करें उनको टिल एंड लेके चलना है. क्योंकि आई कैन स्टिल सी देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ इफ आई स्क्रॉल माई स्क्रीन तो मुझे काफ़ी सारी वीडियोस जो है ना वो ऑफ नज़र आ रही हैं. सो आफ्टर ग्राउंड रूल्स आई होप कुछ बेहतरी आ जाएगी इसमें और एवरीबडी विल स्टार्ट टर्निंग देयर वीडियोस ऑन. सो गाइज, द फर्स्ट ग्राउंड रूल इज, वो तो सबको पता चल ही गया है, दैट इज कीप द वीडियोस ऑन प्लीज. क्योंकि वीडियोस नहीं ऑन होंगी आपकी, इट मीन्स कि या तो आप ज्वाइन करके अपलाइन ने जगाया होगा सुबह और बस सो गए, या फिर आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड हैं किसी और एक्टिविटी में. सो उसमें से लर्निंग्स नहीं आएंगी, वो क्लिक्स नहीं मिलेंगे जो आज आपको मिल सकते हैं और पॉसिबली आपकी बिजनेस की एक पूरी जर्नी को चेंज कर सकते हैं. राइट. सो सबका बिलीव है ना कि इट्स अ जर्नी ऑफ चेंज. तो अगर हमें चेंज होना है तो चेंज इंटरनली हमसे ही स्टार्ट होगी. सो गाइज, फर्स्ट ग्राउंड रूल इज कीप द वीडियोज ऑन. And second ground rule is mic has to be on mute at all times. ठीक है. Because there is a thing called magical fingers. जब हम बैठे होते हैं हम डिस्ट्रैक्टेड, और स्पेशली मैजिकल फिंगर्स ज़्यादा तब आती है जिस टाइम पे वीडियोस ऑफ होती हैं. ऑल ऑफ अ सडन कर्सर जो है ना वो चला जाता है अनम्यूट पे, और पीछे से बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होती हैं, कोई ना कोई इस तरह की जो आपकी पर्सनल बातें हैं वो हम लोग सुनना भी नहीं चाहेंगे. सो ये कि keep the videos on and mics on mute. और बाकी I'm very much sure कि just like every system, this system is also going to be interactive. So if you interactive in a sense, speaking point of view से नहीं, but there are multiple ways to interact. ठीक है. Silent clap होती है, आपका technical hand raise होता है, तो you can do that to be responsive. राइट. एंड गाइज, मोबाइल्स को तो काइंडली बिल्कुल साइड पे रख दीजिए. ठीक है. आई होप मोस्ट ऑफ यू, मैक्सिमम जिसकी कोई मजबूरी नहीं है, एवरीबडी आप लोग अपने लैपटॉप से ही कनेक्टेड होंगे. और अगर आप लोग मोबाइल से भी कनेक्टेड हैं तो काइंडली अपने मोबाइल्स को ना साइलेंट पे एटलीस्ट कर दीजिए और सीकिंग जोन में बैठें. ठीक है. सो दीज आर वेरी 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 बेसिक एंड सिंपल ग्राउंड रूल्स. ठीक है. जिनको आप फॉलो करेंगे यू विल गेट मैक्सिमम लर्निंग फ्रॉम टुडेज सेशन. बिकॉज आई एम ऑल्सो एक्साइटेड. मुझसे ना एक्साइटमेंट में बोला भी आज नहीं जा रहा. ठीक है. सो इतना मजे का सेशन होने जा रहा है. सो गाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद R&R फर्स्ट. ठीक है. सो फॉर दोज हु आर न्यू, लेट मी टेल यू व्हाट R&R इज. सो ऑल ऑफ दोज पीपल जो कुछ ना कुछ बिजनेस में कर रहे हैं, कोई ना कोई उनकी अचीवमेंट्स है ना, उनको बेसिकली रिकग्नाइज किया जा रहा होता है. R&R stands for rewards and recognitions. So we will be starting with R&R and we will start with Gold Star. So Gold Star are those people जिन्होंने एटलीस्ट मिनिमम महीने के 2 चेक्स अर्न किए हुए होते हैं. ठीक है. अराउंड रफली अगर मैं बात करूं तो 1.25 लाख रुपया महीने का अर्न किया है. सो दीज आर दोज पीपल जिन्होंने रूल 3 वैसे बाय द वे किया हुआ है. ठीक है. तो जो लोग कंसिस्टेंटली रूल 3 कर रहे होते हैं, देयर कम्स अ टाइम दे स्टार्ट अर्निंग गुड एंड दे स्टार्ट बिकमिंग कंसिस्टेंट. ठीक है.
सो अभी मैं गोल्ड स्टार्स के नेम्स अनाउंस करूंगी एंड आई हैव अ वेरी बिग लिस्ट. ठीक है, सो गाइस आप लोगों ने ना, बिकॉज अब हम हर नेम के ऊपर अनम्यूट नहीं कर सकते, सही है. सो वरना फिर हम 12 बजे तक ना यही करते रहेंगे, आर एन आरी. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड साइलेंट क्लैप विच इज डन लाइक दिस. ठीक है, सो वंस आई विल बी अनाउंसिंग द नेम्स, आप लोगों ने साइलेंट क्लैप करनी है लाइक दिस. और उसके बाद फिर ये है कि हम लोग एक दफा ही अनम्यूट करके सबको कॉन्ग्रेचुलेट कर देंगे. सो आई एम स्टार्टिंग द नेम्स. आई एम स्टार्टिंग विद गोल्ड स्टार्स फर्स्ट. सो फर्स्ट नेम इज मारिया जदून, अरसम तारिक, लारेब शाह, मोहम्मद हुजैर, नोमान फारूक, मलिहा जमील, जरमीन मुश्ताक, सबा नूर, अब्दुल हनान मुगल, अमीरुल हक, तहरीम एहसन, तमन आबिद. So magical finger. So please guys stay on mute. Farooq Aneek, Asim Farouk, Asma Adnan, Tahir Amjad, Waqas Saeed, Maheen Islam, Hamza Riaz, Shahman Mohsin, Mohsin Tanveer, Afan Hashmi, Abdul Manan Hashmi, Umar Fazil, Faiz Shima, Ahmed Chaudhry, Raja Sameer, Bilal Anjum, एहसानुर रहमान, गौहर वहीद, उसामा अंसारी, समीर अंसारी, हाजिक मुनीर, आरिफुल्ला, आमिर निसार, फहीम जफर and Awais bin Zahid. So many congratulations to all the gold stars. So guys, now you can unmute and give a congratulations. Congratulations, guys. Keep it up. Congratulations, guys. Congratulations to everyone. guys. Thank you guys. Congratulations, everyone. Congratulations to all winners qualified. Thank you. जबरदस्त, सब लोग छा गए हैं. अब हम लोग आगे मूव नैरो करते हैं. नैर. We have हाँ नैरो नैर भी आ गया. सो नैरो नैर आ गया सिंस, तो अब हम आगे चलते हैं. ठीक है, इसका हम सारे वेट कर रहे होते हैं. सो अब इसके बाद गाइस, अब आप लोगों ने ना वन बाय वन आई विल बी अनाउंसिंग. हम अनम्यूट करेंगे, हम कॉन्ग्रेचुलेट भी करेंगे, साथ साइलेंट क्लैप भी करें एंड गिव योर मैक्सिमम एनर्जी. मैं आपको बताऊं, आज आप अचीवर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे ना, कल में ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो मैंने देखा है, वो लोग एक्साइटमेंट के साथ किसी की अचीवमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, कल को उनका नाम लाजमी आ रहा होता है. ठीक है, आज आप खुश होंगे किसी के लिए, कल देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हियर सिटिंग इन सिस्टम एंड अप्रिशिएटिंग यू ओवर योर अचीवमेंट्स. सो अब नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दोज पीपल जो सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट पे नहीं बल्कि टीम वर्क के ऊपर माइलस्टोन्स को अचीव कर रहे हैं. एंड द फर्स्ट माइलस्टोन इज टीम L1. सो टीम L1 खुद से नहीं हो सकता, अकेले हो भी सकता है, मतलब वो पर्सनल L1 होता है, लेकिन it means कि you are not only earning, you are also, you know, uplifting your team as well. You are helping your team out as well. So the first name that I have in team L1 is Faiz Chima. बहुत आला, मुबारक Congratulations, Faiz bhai. Congratulations. तो मुझे लग रहा है अभी मैंने भी नाश्ता नहीं किया हुआ, टू बी ऑनेस्ट. मैं भी डायरेक्ट उठी हूँ और सिस्टम में आ गई हूँ. ठीक है, सो प्लीज गाइस अप्रिशिएट विद ओपन हार्ट. आई एम गोइंग टू टेक द सेकंड नेम, बट इससे भी ज्यादा भी आपने ना छतें फाड़ देनी है. ठीक है, सो द सेकंड नेम इज ताहिर अमजद. मुबारक So the third name is Congratulations. Nero Nair. और third name is Awais bin Zahid. ठीक है, तो अब हम ना जरा बिगर बॉयज क्लब की तरफ आते हैं. ठीक है, विच इज टीम L2 अचीवर. ठीक है, अब L2 भी ना हायर चांस होता है व्हेन L1s आर हैपनिंग एज वेल. सो आप इतनी पेस पे अपनी एफर्ट, अपनी एनर्जी पुट इन कर रहे हैं
कि उसके बाद आप सिर्फ अपनी टीम को ये नहीं हेल्प आउट कर रहे कि मैक्सिमम लोग माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं, साथ में आप अपनी टीम में L1s भी पुल करने की कोशिश करते हैं, तो तब जाके ये माइलस्टोन अचीव होता है, विच इज टीम L2, which is 30,000 business volumes in a week. Or we have one name this week in team L2, which is none other than Hussein Mohsin Awan. चलें, so चलें, अब कुछ टाइम नहीं, अब म्यूट पे ही हो जाए, ठीक है। अब मैजिकल फिंगर का ध्यान रखना है, क्योंकि अब अनम्यूट हो रहे हैं ना, तो किसी ना किसी टाइम पे मैजिकल फिंगर जो है वो चली जाएगी, ठीक है। सो गाइस, अब इट्स टाइम फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल, जो हमारी बिजनेस की ना एक बेस है, उसके बगैर हमारी लर्निंग्स कंप्लीट नहीं, मतलब होती ही नहीं है, हम सीख ही नहीं कर सकते जब तक हम इस रिचुअल को नहीं करते। सो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी इस आइडियोलॉजी को, और considering the fact that there are so many people on attending system, trust me guys, for those who are attending it for the first time, those who are new, यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करने वाला है, ठीक है। सो खुल के ये वाला रिचुअल करें, क्योंकि इससे आपकी मैक्सिमम लर्निंग्स होंगी, एंड दिस इज नोन एज एम्प्टीइंग द कप। हाउ वी डू इट, कॉन्सेप्ट इज कि आपने सब कुछ अपने कप में पोर करते जाना है। सो क्लोज योर आईज, बट बिफोर क्लोजिंग योर आईज मुझे एक दफा देख लें। यू हैव टू एक्सटेंड योर लेफ्ट आर्म एंड होल्ड अ virtual cup, an imaginary cup in your hand, ठीक है, just like this, the way I am doing it, and now close your eyes, ठीक है। अब हाँ, सो जल्दी जल्दी, शाबाश इब्राहिम, बातें बाद में कर लें। सो हाँ चलें। सो गाइस, नाउ आई एम स्टार्टिंग। जो थॉट्स आ रही है ना, स्टार्ट पुटिंग इट इन योर कप, ठीक है। आपका नाम गोल्ड स्टार में बस आते आते रह गया, आप बस पता नहीं था 50 RSPs भूल गए थे, पुट दैट इन द कप, कोई मसला नहीं है। इस मंथ, दिस इज द न्यू सेल्स मंथ, दोबारा कर लीजिएगा। किसी को फील हो रहा था कि बस रूल 3 करना था, लास्ट मोमेंट पे प्लान जो है वो रीस्केड्यूल हो गया, इट्स ओके, ये वाला वीक है, अनदर वीक डू रूल 3 एंड यू नो गिव योर बेस्ट दिस वीक। किसी को ये लग रहा है कि शायद मैंने बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव कर ली है इस वीक में, मेरा वीक बेस्ट वीक गया है, सो इसको भी एम्प्टी कप करते हैं, क्योंकि वो भी कई दफा लर्निंग्स में हिंड्रेंस बन रहा होता है। किसी को ये फील हो रहा है कि मेरा जो है वो, मैं एक सर्टेन पॉइंट पे आके इसलिए स्टक हूँ क्योंकि मेरे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आ रहे हैं बीच में, बच्चे तंग करते हैं, ठीक है, कभी किचन में बहुत ज्यादा काम होता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, सबके साथ होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स है बंदे की लाइफ में, जस्ट पुट ऑल ऑफ दैट इन द कप एज वेल। वो जो कॉर्नर में भी एक थॉट नजर आ रही है ना, उसको भी कप में पुट करते हैं, क्योंकि वो आपकी लर्निंग्स को इफेक्ट करेगी। बहुत कोशिश की डाउनलाइन उठाने की, नहीं समझ आई, कल इतना अच्छा एडिफाई किया था, बट आज नंबर ऑफ जा रहा है, नंबर साइलेंट पे जा रहा है, पुट दैट इन द कप। आप अपनी लर्निंग्स अब लेने आए हैं, सिस्टम हैज स्टार्टेड, सो पुट दैट इन द कप एज वेल, ठीक है। अब कप ना आहिस्ता आहिस्ता भारी होने लग गया है, सो what you are going to do is, और भी कोई थॉट आ रही है, शाबाश, जल्दी जल्दी पुट दैट इन द कप। अब कप जब भारी हो रहा है, अब कप को तोड़ना नहीं है, क्योंकि इसी कप में अभी हमने लर्निंग्स लेनी है। सो टिल्ट दैट कप टुवर्ड्स मदर अर्थ एंड स्टार्ट शेकिंग इट। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही हो गया, सो बिल्कुल सही है। सो काफियों के कप मुझे लग रहा है बहुत अच्छे एम्प्टी हो गए, आई कैन सी द स्क्रीन्स। सो गाइस, नाउ कप इज एम्प्टी, ठीक है। नाउ इट्स अ न्यू डे, अ न्यू वीक, और न्यू लर्निंग्स के साथ जस्ट गेट रेडी टू गेट न्यू लर्निंग्स। और अब टेक अ डीप ब्रेथ, ठीक है, ब्रीद इन, गहरा सांस, एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट,
breathe in and breathe out. ठीक है. So guys, open your eyes gradually. और जो भी आपको सामने अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, give a very beautiful smile, क्योंकि your smile can also change somebody's day. ठीक है, बेस्ट हो गया. So now we have emptied the cup as well. ठीक है, अब this is the time जब learnings लेने का टाइम आ गया. और ये मेरे लिए थोड़ा सा इमोशनल टाइम है. ठीक है, बिकॉज अक्सर आई हैव हर्ड वाइल इंट्रोड्यूसिंग द स्पीकर, टेंशन इस बात की नहीं हो रही होती कि बोलना क्या है, कैसे बोलना है. असल में व्हेन आई गॉट टू नो लास्ट नाइट, तो मुझे इस चीज़ की एंजाइटी थी कि मैं ना शायद अपने वर्ड्स के साथ आई विल बिकम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स और मैं जस्ट कभी कर ही नहीं सकती. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस समबडी टुडे हु इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. ठीक है, और मुश्किल काम इस वजह से है बिकॉज वही बात है कि कहते हैं ना कि आपको जिसने इतना कुछ सिखाया हो, चलाया हो, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इंसान उस रोल को जस्ट कर सके, कि पूरी तरह से बता सके कि क्या था. क्योंकि बिकॉज अभी इस टाइम पे ना बात करते हुए भी ना ऐसे डे 1 से when I started, so वो सारा जर्नी मेरे दिमाग में घूम रहा है. ठीक है, and when I started guys, I started almost 2 years back. और मैंने उस टाइम पे भी ना एक चीज देखी थी and I observed. वो कहते हैं ना when you are new in the system, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा सा जज करते हैं चीजों को. So I was in judgmental mode and I judged one very good thing about that person, and it was he was already very successful. He was already an example. मैं देखती थी RNRs, his name is coming in every category. ठीक है, uplines are taking his name as an example. तो ये मुझे समझ में बड़ी अच्छे से आ गया था पहले महीने में ही when I started कि he is somebody to follow. ठीक है, और अगर if I'll be holding his hand तो कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगी. ठीक है, और I once said to him कि you are my benchmark, for the reason because obviously he was growing so well. So he gave me one piece of advice. I don't know, being a downline, how much I have followed, क्योंकि वही बात है कि I might not be a good downline. लेकिन he told me one thing only. He said आप मुझे copy paste करती जाएं. One day you will become like me. And to be very honest, वो टाइम आ ही नहीं पा रहा, इस वजह से कि every time ना I am trying to meet his pace, I am trying to catch his speed. वो स्पीड नहीं पकड़ सकते हम, बिकॉज कोई नॉस सिलेंडर शायद लगा हुआ है. ही इज ऑलवेज 10 times फास्टर देन एवरीबडी ऑफ अस. और मेरा जो एक बिजनेस का चैलेंज था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, मेरा एक ही बिजनेस का चैलेंज था कि ऐसा ना हो जाए किसी टाइम पे कि माई अपलाइन गेट्स so busy, he may get so many people in team, very competent people, that he forgets me and he forgets giving me time, and I lose the learnings. ठीक है, ये ही एक चैलेंज है जिसकी वजह से ना मैं शायद जो अभी कुछ थोड़ी बहुत मैं कुछ कर भी रही होती हूँ बिजनेस में, वो शायद ये चीज मुझे बहुत ड्राइव कर रही होती है. दिस फियर, दिस चैलेंज ड्राइव्स मी. ठीक है, सो आई हैव स्पोकन माई हार्ट आउट वेरी ऑनेस्टली ओवर हेयर. सो अगर मैं उनका थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड बताऊं, तो ही इज़ फ्रॉम लाहौर, ही बिलोंग्स फ्रॉम लाहौर. ठीक है, ही हैज़ डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम UET लाहौर. ठीक है, अभी अब फुल कप नहीं हो जाना, कुछ लोग जो है ना वो अब एक्साइटमेंट में ऑलरेडी, सो एम्प्टी कप करके सुने. और करेंटली ही इज़ रिजाइडिंग इन DHA5, ही इज़ इन इस्लामाबाद. We are blessed कि he decided, मतलब his family decided कि हमें इस्लामाबाद रहना है. So we get learnings almost on daily basis from him, on ground support एक है. So ये था कि हाँ, so king, बिल्कुल ऐसा ही है. तो he is the king, he is known as the king, he is known as DR machine. आप लोगों ने सुना होगा, because DRs वो एक कल्चर है ना हमारा, being part of infinity, के you have to keep on doing DRs. He is the right example of that as well. He never stops. He keeps on doing DRs. He keeps telling his team. He keeps inspiring his team.
and he's leading from the front, he's leading by example all the time. Matlab everything that he's saying, aisa nahi hota ki he's only saying it to the team, he's only saying it to the other people. He first sets that benchmark and then tell us कि आपने उस benchmark तक पहुंचना है. ठीक है, so a true leader is that. और वो जो concept है ना servant leader का, वो उनसे सीखने को मिलता है. Being so successful, he's a Sapphire Star today, and he's not only Sapphire Star, he has Sapphires in his team as well, and he's pulling more Sapphires in his team as well. So he's a growing leader. लेकिन still वो जो servant leader वाला concept है very down to earth. You see him, you will never see him bragging about anything, and his work actually speaks all the time. आपको बोलने से, उनके साथ टाइम स्पेंड करने से, उनके the way he walks, the way he talks ना, आपको पता चल जाएगा कि he is somebody who's talking success, thinking success all the time. और मुझे अब्बास से ना, मैंने बोल ही दिया, so 2 चीजें लर्न मैंने की थी फ्रॉम द स्पीकर. एक चीज थी कि मतलब मैंने एक चीज ये देखी थी कि उन्होंने मुझे बताया था कि ज़मीन बिजनेस में ना हर चीज आज होती है, देयर इज नो टुमारो इन बिजनेस, पहली चीज. और दूसरी मेरी लर्निंग थी कि बिजनेस करना ना एक जिद्दी इंसान का, एक विनिंग माइंडसेट का काम होता है. एंड आई हैव सीन हिम, यू नो, बीइंग जिद्दी, बीइंग वेरी जिद्दी. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू हिज टारगेट्स, व्हेन इट कम्स टू हिटिंग माइलस्टोन, जिद पकड़ के काम करना, और बिजनेस में कुछ भी कल पे ना छोड़ना. हर चीज जो है आज ही करके सोना है, चाहे पूरी रात लग जाए. सो जब इस माइंडसेट से इंसान बिजनेस बिल्ड करता है ना, तो वाकई वो एक एग्जांपल सेट हो रही होती है कि खुद तो ग्रो कर रहा होता है इंसान, साथ में अपने उन लोगों को भी पुल कर रहा होता है जो एसोसिएटेड होते हैं, जो लर्निंग्स ले रहे होते हैं. सो गाइस, अगर आज आप लोग ना ये आज का सेशन नेक्स्ट 1 आवर सीकिंग जोन में, नेक्स्ट 1.5 आवर आप लोग सीकिंग जोन में होंगे, तो ये जितनी बातें मैं कर रही हूँ ना, अगर आप भी उनको सुन के कॉपी पेस्ट कर लेंगे, तो ट्रस्ट मी गाइज, यू विल गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स, अ लॉट ऑफ क्लिक्स फ्रॉम टुडेज सेशन. एंड विदाउट, बिकॉज मैं पता है, टू बी ऑनेस्ट, अगला 1 घंटा क्या पूरा दिन भी बोल सकती हूँ. ठीक है, about the person who has helped me out, about the person who has never give up on me, no matter what. I haven't seen him giving up on me ever. ठीक है, so now is the time कि मैं उनको बुलाऊं without wasting any moment. ठीक है, so guys, I want your 100% when I am inviting the speaker of the day today. So guys, please help me welcome my upline, my mentor, my guiding light, my lifeline, Abbas Ali. Welcome bro. Welcome Abbas. I'm doing this for me, so fuck the world, feed it beans. It's gassed up, everything's stopping me. I'ma be what I set out to be, without a doubt, undoubtedly. And all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No ifs, ands, or buts, don't try to ask him why, how can he? From infinite. Hello, Assalamualaikum. Good morning, everyone. क्या हाल चाल है सबका? Good morning bro. Welcome. Assalam तो गाइस, मेरी ऑडियो वीडियो सही आ रही? कोई मेरे एंड से कोई लैग, कोई डिस्टॉर्शन मेरे बाल भी सही आ रहे हैं कि नहीं? आज थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन प्यारे हैं. अच्छा, मैं कटाए, मैं 3 दिन पहले कटवाए थे. मेरे अपलाइन आए, उन्होंने कहा यार कि सो हमें चेंज चाहिए. हमने कहा चले, आपने पहले भी 3 साल से चेंज करवा रहे हैं तो ये भी चेंज कर लेंगे. तो मैंने फिर मुझे नेक्स्ट जो असाइनमेंट मिली भी एक तरह से कि मुझे कुछ अरसे के लिए लंबे बाल नहीं रखने, एंड मैं बस अपने अपलाइन को फॉलो कर रहा हूँ. एंड सो आप सुनाए, हाउ वाज योर डे? एंड सो फार ऑब्वियसली आज तो सुबह संडे को उठना रिलेटिवली मुश्किल होता है फॉर द पीपल जो कि रिसेंटली ज्वाइन किया है. और इनिशियली
मतलब मेरे लिए भी, मतलब सारों के लिए इनफैक्ट अनकंफर्टेबल होता है जब आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, क्योंकि बिकॉज मैं भी जॉब कर रहा था, तो सुबह सुबह उठना संडे को, बिकॉज एक दिन कईयों का एक दिन होता है, कईयों को चलो स्टिल वीकेंड हो तो फिर भी एक एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है, बट ये कि संडे वाज अ डिफिकल्ट टास्क के सुबह सुबह उठ के एंड ये सिस्टम ट्रेनिंग अटेंड करना। बट लेट मी बी वेरी क्लियर एंड मैं आपको थोड़ा सा अपफ्रंट बताता हूँ एक चीज कि संडे सिस्टम, सो बाय द वे हु आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम संडे सिस्टम, सो प्लीज शो योर हैंड्स। सो ये कुछ उस दिन में क्या थे, कुछ लोग 2 साल हो चुके हैं बट स्टिल माशाल्लाह वो फर्स्ट टाइम मतलब ही लग रहा होता है अटेंड कर रहे हैं। सो ऑल द पीपल जो फर्स्ट टाइम संडे सिस्टम अटेंड कर रहे हैं, सो मैं थोड़ा सा इसकी इंपॉर्टेंस का बता देता हूँ। सो होता ही है कि जब आप जर्नी स्टार्ट कर रहे होते हो तो हर बंदे का एक डिफरेंट माइंडसेट होता है। प्रोबेबली होता ही है कि हम डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, जॉब बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमारा वो माइंडसेट जो बिजनेस को लेके वो नहीं होता। इनिशियली हमें बिलीव होता है बट माइंडसेट नहीं होता, और इवेंचुअली होता ही है कि बिलीव या माइंडसेट जो होता है ना वो ओवरनाइट नहीं बिल्ड होता, ठीक है। एंड माइंडसेट बिल्ड करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग होती है वो संडे सिस्टम ट्रेनिंग होती है। एंड इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आपको माइंडसेट बिल्ड करना है या इवेंचुअली आपको सिस्टम बिल्ड करना है, सो उसमें आपको उस सिस्टम का पार्ट बनना बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड आप उसको कंसिस्टेंट बेसिस पे मतलब अटेंड करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज हम जो कुछ भी हैं, मतलब जितने भी आप सीनियर लीडर्स देख रहे होंगे, अप्लायंस देख रहे होंगे, हमारे सब कुछ हम जो सीखा, मैक्सिमम जो मैं एनर्जी या लर्निंग या माइंडसेट बिल्डिंग होती थी दैट वाज थ्रू संडे सिस्टम। इसलिए जितने भी रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है, सो इस चीज को ना मतलब समझ लें कि ये पत्थर पे लकीर, अनलेस एंड अनटिल कोई मेडिकल इमरजेंसी या बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं आता, सो ये संडे सिस्टम आपको हमेशा अटेंड रेगुलर बेसिस पे करना है। जब भी संडे को आता है तो आपको एक एनर्जी, एक बूस्ट भी मिलता है, बिकॉज जब आप पूरा वीक काम कर रहे होते हो आप कहीं ना कहीं ऑफ ट्रैक, थोड़े से दिमाग में कुछ ना कुछ चीजें चल रही होती है जो कि आपको बॉदर कर रही होती है। सो संडे सिस्टम से यू गेट द क्लैरिटी एंड फर्दर नेक्स्ट वीक के लिए आपको एक बूस्ट मिलता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ संडे सिस्टम। एंड सो आज का जो संडे सिस्टम है, मैं थोड़ा सा आपको एक राइट एक्सपेक्टेशंस भी कर देता हूँ, बिकॉज इस संडे सिस्टम से अक्सर ही फीलिंग आती है यार कि दिस इज समथिंग जो कि मोटिवेशनल टॉक होगी या आपको मोटिवेट किया जाएगा, ठीक है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, ठीक है, ना मैं कोई टेड टॉक करता रहूँ, ठीक है। जितने भी स्पीकर आते हैं आप अप्लायंस को देखेंगे, फहीम भाई, हारून भाई, फहीम भाई, मामून भाई, हुसैन, जुमर, अवैस, सारे जितने भी स्पीकर आपने देखे होंगे ट्रेनिंग्स वगैरह में, वो जो कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है, अब हर अपलाइन का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। सो वो हर अपलाइन अपनी जर्नी, अपना वर्जन शेयर कर रहा होता है जो कि उनको रियलाइजेशन हुई होती है, और आपको हर अपलाइन से आपको डिफरेंट डिफरेंट लर्निंग्स मिल रही होती है। सो सिमिलरली मैं भी आज हम जो ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, सो मैं कोई आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा कि नहीं यार बहुत ज्यादा पैसे कमाने चाहिए, वो कहते हैं ना कि सब बस बाग दिखाने चाहिए, सो वो वाली चीज मैं आपसे नहीं शेयर करने आया। सो मैं जो चीज शेयर करना है, सो मुझे कुछ रियलाइजेशन हुई, मुझे बिजनेस में कुछ चीजें सीखी एंड उसकी इंपॉर्टेंस का समझ में आया, और वो आपको शेयर करने आए हम, ठीक है। और इसमें वो कहते हैं ना कि समझदार आदमी एक्चुअली में दूसरों की गलतियों से सीखता है, दूसरों के फुटस्टेप फॉलो करते हैं जो कि ऑलरेडी उस पाथ को फॉलो कर, उस पाथ पे चल रहा हो। सो अगर आप उस पाथ को फॉलो करेंगे, प्रोबेबली जो हमने शायद 1 साल में 2 साल में अचीव किया है, शायद आप एक मतलब मे बी शायद आपको मतलब कम टाइम लग रहा है, शायद आप साल में कर लें या 1.5 साल में कर लें। सो जो भी चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट हेल्प मी, मेरे अप्लायंस से मैंने सीखा एंड इवेंचुअली थ्रू माय एक्सपीरियंस मैंने सीखा जो मैं के इवेंचुअली आपको मैं शेयर करने जा रहा हूँ। सो मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा, बिकॉज आप में से कुछ लोग नए हैं, उनको नहीं पता होगा मेरे बैकग्राउंड के बारे में। सो आई कम फ्रॉम अ फैमिली, सो बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। सो मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे फादर वाज इन आर्मी। सो हमारा शुरू से, मेरा तो इनफैक्ट शुरू से प्लान ये था कि मैं आर्मी में जाऊंगा। सो मुझे कोई इनिशियली
बिजनेस करने का कोई इतनी इतनी कोई एम्बिशन नहीं था लाइफ में. आई ऑलवेज वांटेड यार कि बस पेरेंट्स के फुटस्टेप फॉलो करने हैं एंड एग्जैक्टली वही करना है कि जो उन्होंने किया. सो मैंने बाय द वे आर्मी के लिए अप्लाई भी किया था. मैंने आर्मी में नहीं हुआ था बाय द वे, एंड पैरेलल में मैंने इंजीनियरिंग की. मैंने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया. सो आई डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम यूटी लाहौर. मेरी ग्रेजुएशन 2015 में हुई थी और उसके बाद फिर मैंने 3 साल डिफरेंट फील्ड्स में काम किया और मैं कॉन्स्टेंटली जॉब स्विच करता रहता था. मतलब मैं 1 साल जॉब की, मतलब जॉब में एक्सपीरियंस अच्छा रहा. इवेंचुअली मुझे कुछ रियलाइजेशन हुई कि मुझे स्विच करना चाहिए. सो मैं पहली जॉब स्विच की, दूसरी जॉब स्विच की एंड देन मैं थर्ड जॉब मैंने स्विच की. और उसके पीछे जो मेजर सबसे बड़ी रियलाइजेशन वाज कि यार कि अब जिस जॉब में मैं जा रहा था ना, मुझे ठीक है अर्निंग का मुझे उस वक्त इतनी मोटिवेशन नहीं थी, बट मेरी मोटिवेशन इन लाइफ वाज कि यार कि मुझे लाइफ में कुछ करना है कि जहां पर मैं मेहनत करके किसी पॉइंट तक पहुंच सकूं. और मुझे वो किसी जॉब से पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा था. सो माय इनिशियल मोटिवेशन टू डू समथिंग इन लाइफ वाज ओनली कि यार कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है या कुछ डिफरेंट करना है. और उसमें अब द पॉइंट वाज कि अब मैं करूंगा क्या, बिकॉज मुझे वो हमारी फैमिली, वो मैंने आपको बताया था कि हमारी फैमिली में यूजुअली बिजनेस को इतना इनकरेज नहीं किया जाता है. एंड जिन्होंने बिजनेस किया वो ज्यादातर मतलब ट्रेडिशनल बेस किए, एक्सपीरियंसेस अच्छी नहीं रहे, तो ऐसा कोई प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं थी कि मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए. और मीनवाइल सो मैं आई वाज डूइंग अ जॉब इन फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम. फॉर वहां पर I got to meet a person जो कि मेरे अपलाइन है, which is अफान भाई. ठीक है, सो अफान भाई से मेरी इनफैक्ट मुलाकात हुई थी इन फौजी फर्टिलाइजर. और मेरा टेन्योर बाय द वे फौजी फर्टिलाइजर में ज्यादा नहीं रहा था, मतलब हार्डली 6 to 8 months में वहां पर मेरा टाइम फ्रेम गुजारा था. ठीक है, और जब मैं वहां पर टाइम गुजारा, इनिशियल मेरा वो एक्साइटमेंट थी. ठीक है, मशीनरी मैकेनिकल जो सीखा उसको अप्लाई कर रहे हैं, वो सब कुछ था वहां पर. बट अगेन वही बात थी कि आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार कि ये प्लांट में मैं सारी जिंदगी नहीं रहना चाहूंगा. ठीक है, सो मुझे वो सब चीजें कॉम्प्रोमाइज करके अपनी सारी जिंदगी प्लांट पे नहीं गुजारनी थी. एंड देन इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि मुझे वापस जाना चाहिए. सो मैं आई मूव बैक, मैं इस्लामाबाद में आ गया. सो करंटली आई एम लिविंग इन इस्लामाबाद. ठीक है, वैसे आई एम फ्रॉम लाहौर, सो अभी हमारा जो रेजिडेंस है दैट इज इन इस्लामाबाद. बट मुझे लगता है कि मैं जब कराची गया था, मैं जो कहते हैं ना कि एक अल्लाह ताला के प्लान वो ये था कि शायद मुझे अफान भाई से मुलाकात करनी थी और कोई रीजन नहीं थी. एंड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जिन्होंने मुझे अफान भाई से मिलाया, अब वो पता है कि वो मेरे समझ ले भाइयों की तरह है. मतलब वो इनिशियली, मतलब अफान भाई वॉज कंप्लीट स्ट्रेंजर टू मी. मेरा उनके साथ बस 1-2 दफा मतलब इनिशियली तो वो फोन हुए थे एंड देन इवेंचुअली फिर ये है कि मैं वहां पर गया तो फिर हमारी ऑन एंड ऑफ मुलाकात होती रहती थी. बट इतनी क्लोजनेस नहीं थी, जो कहते हैं ना कि आपकी बड़ी क्लोज्ड रिस्पेक्ट सब चीजें थी, बट उतनी ज्यादा क्लोजनेस नहीं थी. सो जिन्होंने मुझे उनको रेफर किया था वो मेरे बड़े क्लोज थे, बड़े एक तरह से कह सकते हैं भाइयों की तरह थे. उनसे मैं मतलब मशवरा, काउंसलिंग हर चीज में करता था एंड इवेंचुअली हम जॉब भी साथ करते थे. और उन्होंने मुझे कहा कि जब आप जाओगे तो आपको लाजमी मतलब अफान भाई से मिलना, तो वो आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी तो आपको हेल्प या गाइडेंस वगैरह करते रहेंगे. और तो जब मैं वापस आया, मैं थर्ड लास्ट जॉब कर रहा था, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थ्रू अफान भाई. अफान भाई ने मुझे प्रेजेंट की अपॉर्चुनिटी, मामून भाई ने मेरा प्लान किया. और उस टाइम पे मेरी बिजनेस करने की सो ऑल्दो मैंने बिजनेस में इतना कुछ समझा नहीं था. मैं समझे से मुराद कि मैं इस माइंडसेट से आ रहा था कि मैंने बस कुछ लाइफ में करना, जो भी मिल जाएगा ना तो मैं कर लूंगा, बिकॉज मेरे पास लाइफ में कोई ऑप्शंस नहीं थी. अगर ऑप्शंस होती तो शायद मैं कुछ और चीजें भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ. तो मेरे पास लाइफ में एक ही ऑप्शन मिली थी, वो यही अपॉर्चुनिटी, एंड दैट इज व्हाई आई स्ट्रेट अवे ज्वाइन दिस अपॉर्चुनिटी और मैंने इसको परस्यू किया. मुझे हार्डली, मैंने पहले भी आपको अक्सर बताया मुझे एक ही स्लाइड याद थी, दैट वाज ऑफ फुटबॉल, और 2 इनफैक्ट. एंड दूसरा ये था कि माउंट भाई ने मुझे बताया कि यू कैन रिटायर एट द एज ऑफ 30 की एज में आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, सो इतने आप ग्रो कर सकते हो. सो मुझे सारी जिंदगी काम करने की मोटिवेशन नहीं थी, तो इस वजह से मैंने इन 2 रीजंस की वजह से बिजनेस स्टार्ट किया था. बाकी मुझे ओवरऑल आई डोंट रिमेम्बर कि यार कि पूरी प्रेजेंटेशन में क्या, उस टाइम पे तो समझ में आ चुकी थी, अच्छा ठीक है मुझे ये करना होगा, बट उसके बाद मुझे नहीं एग्जैक्टली पता था कि मुझे क्या करना होगा.
सो वो कहते हैं ना कि हमेशा कि वो लीप ऑफ फेथ, वो मास्टर्स प्लान का हमने अक्सर सुना होता है। मेरी सबसे बड़ी रीजन बिजनेस स्टार्ट करने की वो ये थी कि शायद ये अल्लाह ताला से जो मांगा था और वही मिला है। और इसमें विदाउट एनी एग्जैजरेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अगर शायद मैं कुछ एनालिसिस कर रहा होता, कैलकुलेशन कर रहा होता, मैं कभी भी बिजनेस ना कर रहा होता, ठीक है। अगर लेट्स से कि मैं अपनी सोच, अपने थॉट प्रोसेस के मुताबिक अगर मैं ओपिनियन लेके करता तो शायद मैं इस बिजनेस में होता भी ना। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जब ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, मैं अपने फादर के पास गया, मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी है, मुझे क्या करना चाहिए। सो उन्होंने कहा तुम्हारे पास लाइफ में कोई ऑप्शन है? मैंने कहा नहीं। तो बिजनेस का दिल है? मैंने कहा जी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कहते हैं फिर किस चीज का वेट कर रहे हो? जॉब में किधर पहुंच सकते? जॉब में अभी तक क्या किया तुमने? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता क्या किया, बट जो भी काम किया है बस वो 9 to 5 काम किया और उसी में बस दिल से काम किया, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया। सो उन्होंने एक ही बात की यार कि शायद मे बी जो तुम लाइफ में मांग रहे हो ना, तो शायद वही मिला हो, तो तुम्हें इतना सोचना नहीं चाहिए। सो करो एंड अल्लाह बेहतर करेगा। और अगर नियत साफ होगी, इंटेंट साफ होगी, तो लेट से गलत फैसला भी होगा तो अल्लाह ताला आपके हक में बेहतर कर देगा। सो मेरे अब्बू से मेरी इतनी ही ओपिनियन लिया था मैंने, बताया मैंने बिजनेस समझने का इतना कोई ओपिनियन नहीं लिया था। ऑल्दो ही वाज इनक्विजिटिव कि मुझे पता होना चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज वो आर्मी फैमिली हो, अब्बू आर्मी में 35 ईयर्स सर्व किए, तो उनको समझाना, कन्विंस करना, हर चीज की डिटेलिंग वो बहुत ज्यादा पूछते थे, ठीक है। बट समहाउ वो मामून भाई ने भी थोड़ा सा गाइड किया, जिसकी वजह से इवेंचुअली ही सपोर्टेड, और फिर मैंने स्ट्रेट अवे बिजनेस स्टार्ट किया। सो पहली रीजन वाज बिजनेस स्टार्ट करने की कि वो शायद मास्टर्स प्लान था कि जिसकी वजह से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। आज जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, सो मुझे वो जो एसओपी मेरी कवर हुई, 5 to 10 डेज में एसओपी कंप्लीट किया, एंड इवेंचुअली मैं फिर प्लान स्टेज में आ चुका था। और सो इस बिजनेस में, ठीक है, इस बिजनेस में ऑनेस्टली बताऊं, जो मेरी पर्सनैलिटी है, ठीक है, जो मेरी पर्सनैलिटी, अगर आप मेरे जितने भी पुराने दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, उनसे अगर आप पूछें, अगर आप मुझे जज करें क्या कि मुझे ये बिजनेस इनिशियली अगर मैं मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर मैं परस्यू करता तो शायद प्रॉब्लम मैं बिजनेस ना कर रहा होता। उसके पीछे रीजन ये थी बिकॉज मैं बाय नेचर इतना, कहते ना कि मैं बाय नेचर इंट्रोवर्ट था, मैं ज्यादा बात नहीं करता था, कम बात काम में करता था, बट ज्यादा सोशलाइजिंग या इस तरह से मतलब ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं थी मेरी, ठीक है, मुझे अवॉइड करता था ऐसी चीजें। सो अगर मुझे पहले पहले से पता होता तो शायद मैंने अक्सर कहा कि मैं शायद बिजनेस भी ना कर रहा होता, ठीक है। और उसके पीछे सोल रीजन थी कि बिकॉज ये कहीं ना कहीं मेरी पर्सनैलिटी से मुझे कंफर्ट, जो कहते हैं ना, ये कंफर्ट जोन होता है, हर बंदे का एक कंफर्ट जोन होता है। सो दिस वाज नॉट माय कंफर्ट जोन, जिसकी वजह से मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। सो मुझे इवेंचुअली काफी अपने आप में वो चेंज डेवलप करनी पड़ी थी, ठीक है। एंड सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट क्या करते हैं कि यार कि ये जो बिजनेस है, ये तो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, ठीक है। ये तो नेटवर्किंग का बिजनेस, जो नेटवर्क मार्केटिंग है, ये तो मैं तो कुछ डिफरेंट समझ रहा था, ठीक है, ठीक है, ये तो मेरी पर्सनालिटी से लाइन नहीं है, मुझे तो बात करने नहीं आती। ये सब चीजें जो चीज आप सोचते हो ना, जो आपको लगता है यार कि आपको फील होती थी, वो मुझे भी ऑनेस्टली फील होती थी, पता है। बट मैंने कभी भी सोचा नहीं था यार कि आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, यार कि मैंने अब बिजनेस स्टार्ट किया है और मैं इवेंचुअली इसको, ये छोटे मोटे इनहिबिशंस की वजह से मैं इसको बैकआउट कर दूंगा या छोड़ दूंगा। उसके पीछे पहली रीजन तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। माय बिगेस्ट रीजन वाज कि वो अल्लाह ताला का प्लान था, मास्टर्स प्लान था, और आई नेवर वांटेड कि यार मैं वो कहीं ना कहीं उस चीज को डिसअपॉइंट करूं या उसको रेजिस्ट करूं। कि यार कि बाद में भी होता है कि जब आपको अल्लाह ताला आपको अपॉर्चुनिटीज देता रहता है लाइफ में, एंड आप खुद ही उसको ठुकरा रहे हो। तो सो मैं एट फर्स्ट प्लेस आई नेवर वांटेड कि यार कि मैं अब जब मिल गया तो इसमें बेहतरी होगी, इसमें बस बैकआउट करनी सोचना है, इवेंचुअली सारी जिंदगी काम करना है, ठीक है, सूनर और लेटर रिजल्ट आएंगे। एंड इवेंचुअली हुआ ये कि जब बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, इट ग्रू वेरी वेल, आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट्स आने लग गए, अपने आप को वो कंफर्ट जोन से निकाला, ठीक है, बिकॉज हर चीज आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज लाना बड़ा थोड़ा सा इनिशियली इट वाज डिफिकल्ट टास्क, बट इवेंचुअली वो प्रैक्टिस कर करके इवेंचुअली वो चीज डेवलप हो गई।
एंड बट तब तक ना बिजनेस में बहुत मैकेनिकली कर रहा था, मेरे कोई इमोशंस अटैच नहीं थे ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है। मैं बस ये मेरी सबसे बड़ी एक्साइटमेंट वाज कि यार कि कुछ मिल गया लाइफ में एंड जिसमें आई कैन एक्सेल वेरी वेल, मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ, लर्निंग है, ठीक है, कल्चर अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छी है, एवरीथिंग वाज देयर। मतलब ये टोटल मुझे लाइफ में जो उस वक्त तक उस पॉइंट तक मोटिवेशन थी। बट हुआ ये, जब आपकी जर्नी फर्दर मूव कर रही होती है ना, जब आप अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे होते हो अपने दोस्तों वगैरह से, अपने सर्कल में, ठीक है, एंड वहां से फिर आपको एक डिफरेंट किस्म की, वहां से एक्चुअल में आपकी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंटली डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। इनिशियली सब कुछ जबरदस्त रहता है, आप एक्साइटेड भी होते हो, यू आर पॉजिटिव, और आपको बिलीव भी होता है यार कि आपको जो लाइफ में मांगा था वो मिल गया है। बट शिफ्ट तब आता है जब आपको रिजेक्शंस होती हैं, ठीक है, वहां से एक्चुअल में होता ही है कि आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। सो उस टाइम तक सिर्फ अगेन रीआइटरेटिंग द फैक्ट कि मोटिवेशन वाज कि बस ठीक है कुछ लाइफ में करना है, यही मोटिवेशन थी। बट हुआ ये कि जब जर्नी फर्दर मूव की तो सर्कल में आपकी कुछ ऐसे भाई या कोलीग्स भी होते हैं कि जब आप उनसे अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे होते, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके यूजुअली लोगों की परसेप्शन बड़ी डिफरेंट है, ठीक है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, लोग समझते नहीं है कि ये बिजनेस मॉडल क्या है, किस मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम पास में जो अच्छी बुरी छोटी मोटी कंपनियां, ठीक है, जो इलिजिटिमेट अनप्रोफेशनल प्रैक्टिसेस होती रही हैं या उस कंपनी में लोग इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या था कि जब मैं एक अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा था वहां से असल में काफी ज्यादा रिजेक्शन मिलती थी, ओपिनियंस भी मिलते थे, जज भी किया जाता था, पता है, ठीक है, और तरह तरह के तरीके से जज किया जाता था। और उस टाइम पे मतलब ये सबसे ज्यादा एक आपकी जो एनर्जी, तो आप इस पॉइंट पे थे और आप बड़े डाउन फील कर रहे होते हो यार कि मैं इतनी साफ इंटेंट के साथ, मुझे पोटेंशियल भी नजर आ रहा है, सब कुछ सब तो है वहां पर, बट ये अच्छा ठीक है आपको नहीं करना तो कोई मसले की बात नहीं, बट वो जो आपको जज करना, वो आपको तरह तरह की बातें करना, ठीक है, सो गॉसिप्स, वो सब चीजें ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बॉदर करती थी कि यार कि मैं सारी जिंदगी मैंने अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने भाइयों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है और आज यही लोग हैं जो मुझे जज कर रहे हैं, ठीक है। और वहां पर अक्सर ही फील होता था यार कि शायद ना मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट मुझे दो रीजन थी जिसने हमेशा मुझे इस चीज पे बैकआउट करने में या मूव बैक करने पे या कुछ और करने पे मजबूर नहीं किया। पहली रीजन वो सिंपल कि यार कि अब जब मिल गया अल्लाह ताला से तो बैकआउट नहीं सोचना है। दूसरी रीजन वाज कि मुझे उस टाइम पे रियलाइजेशन हुई, ठीक है, कि यार मैं बिजनेस कर क्यों रहा हूँ बाय द वे, ठीक है, क्या मैं सिर्फ ट्राई करने के लिए आया था बिजनेस में या कि मुझे बाकी लाइफ में कुछ करना है, ठीक है। और माय बिगेस्ट रीजन जो मुझे रियलाइजेशन हुई थी वाज माय फैमिली, जिसकी वजह से मैं बिजनेस स्टार्ट किया था, पता है। और बिकॉज मुझे ये चीज समझ में आई थी यार कि हमारे पेरेंट्स ने, इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स ने, हम सब के पेरेंट्स, हम सब सेम बैकग्राउंड से यूजुअली हम बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर आप हम सब की फैमिली के बारे में बात करें, आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मेरे पेरेंट्स ने, बहुत अम्मी अब्बू दोनों ने बड़े सैक्रिफाइसेस किए हुए थे मेरे लिए, ठीक है, मेरे लिए, मेरे बहन भाइयों के लिए, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे मतलब स्टेप्स लिए थे कि जो कि उस टाइम पे बुरा लगता था यार कि मेरे पेरेंट्स क्यों कर रहे हैं, मतलब कि ठीक है कि अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए, बट वो सारा हार्ड अर्न चीजें, मतलब मेरी अम्मी ने ऑनेस्टली बताऊं मतलब अपना हमारी एजुकेशन के लिए अपना घर भी सेल किया, इवन ज्वेलरी भी सेल की, ठीक है। फादर ने इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर के भाई को ऑस्ट्रेलिया जाना था, ठीक है, सो फाइनेंस से शॉर्ट पड़ रहे थे, पता है। तो उस टाइम पे अब्बू ने अपनी गाड़ी भी सेल की थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी जो रीजन थी ना वो बड़ी स्ट्रांग थी, मतलब वो हर वो चीज अपने बच्चों को देना चाह रहे थे कि जिसकी वजह से वो लाइफ में कुछ कर पाए, ठीक है। और जब मैं रिकॉल किया आहिस्ता आहिस्ता कि यार कि मेरे पेरेंट्स ने कितना मेरे लिए सैक्रिफाइस किया, ठीक है, और वो उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन दी थी इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। माय रीजन टू नॉट द क्विट द बिजनेस वाज कि मैंने अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को सबसे अच्छी लाइफस्टाइल देनी। मैं मेरी अपनी रीजन ऑनेस्टली बताऊं, अक्सर मेरे से पूछते हैं सब कि यार आपका क्या गोल है, क्या ड्रीम है,
ठीक है, मुझे हमेशा से कभी मटेरियलिस्टिक गोल्स का या मटेरियलिस्टिक चीजों की कभी फैसिनेशन या इतनी अटैचमेंट नहीं हुई। ठीक है, सब चीजें अच्छी लगती हैं, हर बंदे को पैसे कमाने हैं, घर अच्छा होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, बट कोई ऐसी मोटिव मतलब अटैचमेंट कभी भी नहीं रही मेरी लाइफ में। ठीक है, कि यार कि मेरे पास ये नहीं होगा तो शायद मेरी जिंदगी को पता नहीं क्या हो जाएगा। बट उसके अगेंस्ट जो मुझे सबसे बड़ी रीजन मिली थी वाज माय पेरेंट, जिसकी वजह से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, 30 इयर्स मेरे फादर ने आर्मी में स्पेंड किया था, आई स्टिल रिमेम्बर। और हम जो कहते हैं ना कि जब बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे होते हो तो आप ओवर कमिटमेंट कर, मतलब आपकी रूटीन बड़ी टफ होती है। ठीक है, आप फैमिली टाइम नहीं दे पाते। ठीक है, और पार्टीज में, इवेंट्स में, ठीक है, गैदरिंग में नहीं आप ज्वाइन कर पाते। सो मेरे लिए, तो मुझे इस तरह की जब भी फीलिंग आती थी या मेरे सर्कल में से मेरे दोस्त वगैरह मुझे बात करते थे तो मैं अपने अब्बू को, सबसे ज्यादा मेरे लिए इंस्पिरेशन वो थी यार कि मैं जब भी देखता था, मैं मतलब जितने भी आर्मी फैमिली वाले वो रिलेट कर सकते हैं, मतलब वो यूजुअली नजर ही नहीं आते थे। ठीक है, 30 इयर्स आई स्टिल रिमेम्बर, क्या बहुत मुश्किल से कोई टाइम मिलता था। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारा कोई फादर के साथ वो जो फैमिली टाइम होता था वो कब होता था, बहुत रेयरली होता था, पता है, बहुत कम होता था। मेरा जो भी फादर के साथ जो क्लोजनेस ज्यादा बनी थी ना, वो तब बनी थी जब वो रिटायर हुए थे। उससे पहले कोई इतनी, ठीक है, वो ताल्लुक तो था, बट वो जो एक कहते हैं ना फ्रेंडशिप वाला जो एलिमेंट था वो तब आया था जब मेरे अब्बू रिटायर हुए थे। ठीक है, और जब वो रिटायर हुए, ठीक है, तब थोड़ा सा जर्नी थोड़ी सी और टफ हो चुकी थी। जर्नी टफ इस सेंस में हो चुकी थी बिकॉज व्हेन ही वाज इन आर्मी, तो उस टाइम तो सब कुछ था, जॉब भी चल रही थी। ठीक है, वो कहते हैं ना कि सारी सपोर्ट सब चीजें थी, बट इवेंचुअली वो सर्व करके एकदम जीरो से स्टार्ट करना वाज अ डिफिकल्ट स्टार्ट, बिकॉज वो 35 इयर्स सर्व करके ही वो स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, कोई जॉब नहीं थी, एंड इवेंचुअली वो एक तरह से नई जर्नी स्टार्ट कर रहे थे। सो फॉर 2 इयर्स थोड़ा सा उनको हेल्थ का इशू हुआ। ठीक है, और मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, काफी स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब फाइनेंशियली भी स्ट्रगल किया था, और हेल्थ रिलेटेड भी उनको काफी ज्यादा इश्यूज थे। इवन मेरी अम्मी को भी इस चीज का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था 2 साल तक। और उस 2 साल में मेरा जो टास्क था, इनफैक्ट उस टाइम मैंने बिजनेस ही स्टार्ट किया था पहले। उस टाइम मैं इस्लामाबाद में कर रहा था। ठीक है, तो मैं पठानकोट के लिए ऑन कर दो किंजा रखी मैं जी कर सो आई वाज सेइंग कि मैं उस टाइम पे जब ये थोड़ा सा एक रफ पैच चल रहा था लाइफ में, तो आई वाज डूइंग लास्ट जॉब। ठीक है, जब ये चल रहा था, और उस टाइम पे ज्यादातर जो मेरा टाइम गुजरता था ना, तो मेरे लाइफ पे 2-3 काम थे। एक तो जॉब जाना, ठीक है, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, एंड आई वाज प्लेइंग फुटबॉल। सो ये 3 का, इसके अलावा मेरे और कोई लाइफ में काम नहीं था। और मैं हमेशा से काफी ज्यादा उस टाइम पे अल्लाह ताला से दुआ करते थे यार कि मुझे कुछ मिल जाए कि मैं कुछ किसी न किसी तरह अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाऊँ, बिकॉज वहां पर बड़ी ज्यादा एक टफ टाइम था कि जो हमने ओवरकम किया और वो फेस किया था। एंड देन एग्जैक्टली जैसे जैसे वो फादर की तबीयत बेहतर होने लग गई और मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली बिजनेस स्टार्ट करने की, वहां से उसके बाद फिर जर्नी चेंज हुई थी। ठीक है, सो फादर मतलब उन्होंने हेल्थ रिलेटेड जो जितने भी थे वो मतलब बेहतर होने लगे, स्टार्टेड फीलिंग बेटर, एंड देन मैंने भी बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। और जब फिर मैंने इवेंचुअली बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये सारे के सारे जो सिनेरियोज थे, मैं हमेशा से रिकॉल करता था कि यार कि एक तरफ मेरे दोस्तों के, मेरे कोलीग्स की ओपिनियन है, एंड एक तरफ मेरी फैमिली है जिनके लिए मैं बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। सो मेरे लिए प्रॉब्ली, एंड इनफैक्ट फॉर श्योर सबसे बड़ी रीजन वही बनती थी यार कि मुझे किस चीज पे फोकस करना है जिससे मुझे एनर्जी मिलती है। मेरी एनर्जी या मेरी मोटिवेशन वाज माय पेरेंट्स, कि मैं उनको हर वो चीज दे पाऊँ, ठीक है, जो कि वो ख्वाहिश भी ना करें। इनिशियली जब मैं जॉब, मजे की बात बताता हूँ, जब मैं जॉब करता था ना, मेरे पेरेंट्स को मैं जब भी कोई छोटी मोटी चीज लेके आता था ना, तो वो कहते थे यार कि ना इतनी तकल्लुफ किया करो, तुम्हारी इतनी सैलरी नहीं है, ठीक है, अपना ही गुजारा किया करो। और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, मतलब बिजनेस में जब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि अच्छा अर्न करने लगे, अच्छा ग्रो करने लगे, सो अब उनका एटीट्यूड ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब वो, उनका एटीट्यूड पता है क्या होता है, अब वो ख्वाहिश करते हैं कि यार मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। सो इनिशियली नहीं करते थे, पता है इनिशियली क्यों नहीं करते थे, बिकॉज वो पेरेंट्स है ना, मतलब उनको पता होता है यार कि ठीक है
उनको हमसे हमारे बारे में ज्यादा बेहतर पता हो, हम ना भी बोले ना, ठीक है, वो फिर भी फील करके समझ लेते हैं। जैसे आपके अपलाइंस आपके साथ बैठे हैं और आपको उनको समझ में आई थी है कि क्या मसले चल रहे हैं, इसी तरह आपके पेरेंट्स भी आपको फील कर लेते हैं यार कि क्या इश्यूज चल रहे होंगे इसकी लाइफ में। एंड उस वजह से मैं जो भी चीज उनके लिए थोड़ा बहुत करता था तो उसको वो कहते थे बेटा क्या इतनी तकलीफ करने की जरूरत है। बट आज वो चीज बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुकी है। आज ऑनेस्टली स्पीकिंग वो ख्वाहिश करते हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। एंड उसके पीछे वो 3 साल की स्ट्रगल, वो मेहनत थी कि जिसमें वो सारे के सारे जो अप्स एंड डाउन्स हैं, वो चैलेंजेस हैं, वो सब देखे थे, पता है, ठीक है, जो आप सबको इनिशियली फेस करने को मिलते हैं ना, ठीक है, सबको फेस करने को मिलते हैं। सो मुझे भी फेस करने को मिले थे, बट आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज मेरी रीजन टू डू द बिजनेस वाज मच बिगर देन द डीमोटिवेटिंग फैक्टर जो कि सर्कल से मिल रहे होते थे। सो सबसे पहले जो मेरी अल्टीमेट ड्राइविंग फोर्स जो बन चुकी थी ना, ठीक है, वो मेरे पेरेंट्स थी जिनके लिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। एंड लाइफ में आप जितने भी सक्सेसफुल देखें ना, आप जितने भी सक्सेसफुल देखें, वो ये जरूर कहते हैं कि ठीक है आपके गोल होने चाहिए, बट उसके साथ साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट जब तक नहीं होती ना, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाते, कभी भी ग्रो नहीं कर पाते। आप एक पॉइंट तक ग्रो करोगे, बट उसके साथ साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट या उसके साथ वो वैल्यू अटैच, एक बिगर पर्पस होना चाहिए जिसकी वजह से आपको वो अनस्टॉपेबल कर देता है, आपको कोई रोक नहीं सकता। एंड यहाँ पर मैं आई वुड लाइक सीसी टू प्ले अ वीडियो, ठीक है, एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ वीडियो जिसमें आपको ये रियलाइजेशन होगी कि लाइफ में ड्रीम्स और गोल्स की इंपॉर्टेंस क्या है। बिकॉज ड्रीम्स और ये बिजनेस विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी ड्रीम, ये समझ लें कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एक कहते हैं ना कि बस आप मैकेनिकल काम करते रहोगे, बट एक्चुअली में आपको विजन, आपको डेस्टिनेशन का नहीं पता होगा। एंड वंस यू नो कि डेस्टिनेशन क्या है, गोल क्या है, ठीक है, देन आपको समझ में आएगी कि आपको किधर लाइफ में पहुंचना है, और फिर आपको कोई भी नहीं इस बेस में रोक सकेगा, ठीक है। यस सीसी। I'm here to talk about success. The first rule of success is to have a vision. You see, if you don't have a vision of where you go, and if you don't have a goal where you go, you drift around and you never end up anywhere. I mean, as you know, I was born in 1947 in Austria after the Second World War. So I was very fortunate that I stumbled on my vision. And I didn't really like Austria when I grew up. I couldn't wait to get out of there. I couldn't see myself becoming a farmer or a worker in a factory or anything like that. Even though my parents wanted me to stay there and have a normal life. But that was their vision, not mine. My vision was totally different. I felt that I was born for something special, for something unique, for something big. Then one day I went to school. I remember I was 11 years old, and they showed a documentary about America. And there they showed in this documentary the huge skyscrapers, the high-rises, the huge bridges, the 6-lane freeways, and all of this stuff. And I said to myself, that's where I want to be. I don't want to be around here with these little farmhouses and these little buildings. I want to be in America. One day after school, I walked by a store in Graz. So I went inside and I looked around, and then I saw a magazine. I saw a bodybuilding magazine that had Reg Park on the cover. Reg Park was then a 3-time Mr. Universe. And I saw him on the big screen as Hercules. I read that and I said to myself, wow, this is the blueprint for my life. This is exactly what I want to do. I want to become a bodybuilding champion just like Reg Park. I want to get into movies just like Reg Park. And I want to make millions of dollars and be rich and famous just like Reg Park. Do you know how great it felt that I knew where I was going? Imagine the majority of people don't know where they're going. I knew where I was going. That I'm going to become this bodybuilding champion just like him. So it was just a question of how do you do it? I was so relieved because when you have a goal, when you have a vision, everything becomes easy. So people always ask me,
when they saw me in the gym in the pumping iron days. They said, why is it that you're working out so hard? 5 hours a day, 6 hours a day, and you have always a smile on your face. And I told people all the time, I said, because to me, I'm shooting for a goal. In front of me is the Mr. Universe title. So every rep that I do gets me closer to accomplishing that goal, to make this goal, this vision turn into reality. Every single set that I do, every repetition, every weight that I lift will get me a step closer to turn this goal into reality. So I couldn't wait to do another 500-pound squat. I couldn't wait to do another 500-pound bench press. I couldn't wait to do another 2,000 reps of sit-ups. I couldn't wait for the next exercise. At the age of 20, I went to London and I won the Mr. Universe contest as the youngest Mr. Universe ever. And it was because I had a goal. So let me tell you something, visualizing a goal and going after it makes it fun. You've got to have a purpose no matter what you do in life. You've got to have a purpose. So exactly guys, so आपको लाइफ में जब भी किसी पॉइंट पे पहुंचना होता है, so you should know कि exactly आपको चाहिए क्या उसके थ्रू. And my reason was simple, my family. So जब भी मुझे जर्नी में ups and downs आए या जो भी demotivating factor elements होते थे, I always used to look my parents कि यार मुझे उनसे सबसे ज्यादा एनर्जी मिल रही थी. वो कहते हैं ना कि आपके मेरे सनफ्लावर्स वाज माय पेरेंट जिनको मैं देख के विजुलाइज करता था. एंड आई यूज्ड टू विजुलाइज एवरीथिंग कि यार कि मुझे उनको लाइफ में क्या देना है, ठीक है. एंड उसकी वजह से, ठीक है, आई वाज वेरी कंसिस्टेंट, कमिटेड चीजों को लेके, ठीक है. अक्सर मतलब मेरे दोस्त वगैरह यानी इसी बिजनेस में काफी लोग पूछते हैं यार कि कमिटेड कैसे रहना है, कंसिस्टेंट कैसे रहना है, फॉलो क्या करना है, क्यों, किस तरह से करना है. क्या ये बिजनेस में पहले से करते आए थे या मैंने इसको, यू कैन से कि मैंने, ये मेरी कंपनी नहीं थी ऑब्वियसली, ठीक है ना. अब तो मैं ओन करता हूँ बिकॉज मेरी कंपनी है. इनिशियली जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मतलब मैं एग्जैक्टली आप ही के बैकग्राउंड से आ रहा था, ठीक है. एंड मुझे ये चीज समझ में आ चुकी थी कि अगर मुझे इस बिजनेस में ग्रो करना है ना, तो मुझे इस कल्चर में एडजस्ट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इस कल्चर में एडजस्ट होने से मुराद कि जितनी भी ये ट्रेनिंग्स हैं, सिस्टम्स हैं, जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है, इनको फॉलो करना, ठीक है, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर जब तक कि मैं उन चीजों को 100% फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे, ठीक है. तो मेरा भी दिल करता था कि मैं फैमिली को टाइम दूं, ठीक है, मैं ईद पे एक्स्ट्रा टाइम गुजार लूं या दोस्तों वगैरह के साथ हाइकिंग पे चले जाऊं, ट्रैवलिंग पे चले जाऊं, ठीक है, पर्सनल कोई कमिटमेंट या एंजॉयमेंट या कोई पार्टी वगैरह के लिए चले जाऊं. बट फॉर 3 years मेरी जितनी भी एक्टिविटीज या जो भी मेरी लेजर एक्टिविटीज होती थी वाज विद माय टीम ओनली, ठीक है. मैं ज्यादातर अपना टाइम, ठीक है, मैं अपनी टीम के साथ स्पेंड करता था. एंड मेरी प्रायोरिटीज लाइफ में बड़ी सेट हो चुकी थी, बिकॉज मुझे ये समझ में आ चुकी थी कि अगर मेरी प्रायोरिटीज लाइफ में सेट ना हुई, ठीक है, सो मे बी शायद मैं जिस पर्पस के, जो मेरी ड्रीम है, रीजन है, और वो मैं शायद उस तक पहुंच ही ना पाऊं, ठीक है. सो यू सेट योर टारगेट एंड यू then eventually you set your priority so that आप उस पॉइंट तक पहुंच सको. अब जस्ट इमेजिन आपका गोल ये है कि अपने पेरेंट्स को लाइफ में कहीं पहुंचना है, एंड जस्ट लॉजिकली थिंक यार कि वो जो मेरी प्रायोरिटीज हैं, क्या मुझे उस पॉइंट तक लाइफ में लेके जाएंगी कि नहीं लेके जाएंगी, ठीक है. एंड उस प्रायोरिटी में इस बिजनेस के हिसाब से आपको चेंज होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बताए. एंड अगर आप रेजिस्ट कर रहे हो, ठीक है, विच मीन्स कि वो जो मास्टर्स प्लान है आप उसी को इग्नोर कर रहे हो. बिकॉज मास्टर प्लान क्या था कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है. अब अपॉर्चुनिटी मिली है विच मीन्स कि आपको उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू फॉलो 100%, यू हैव टू बी कमिटेड. एक्टिविटीज जो हमें बताई जाती हैं, ये सब चीजें आपको बड़ा कंसिस्टेंट बेसिस पे आप करते रहेंगे तो इवेंचुअली आपने, जिस तरह आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने कहा ना कि मैं हर रेप जब करता था, एक्चुअली मैं आई वाज गेटिंग क्लोजर टू माय टारगेट. सो मैं जो भी एक्टिविटीज कर रहा होता था ना, सो मैं हमेशा ये सोचता था यार कि मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ, जो भी अपनी टाइम की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं अपने गोल, अपने ड्रीम की तरफ पहुंच रहा हूँ, जहां पर मैं अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को हर वो चीज दे पाऊंगा जो कि वो लाइफ में चाहते हैं, ठीक है. सेम चीज क्योंकि आप में से मेजोरिटी लोग इस बेस में सेम चीज आपको सबको फील होती होगी, पता है, ठीक है.
बट वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो चेंज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग के आप अपने गोल, अपने ड्रीम्स तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप कोई भी काम देख लें, आप कोई भी काम देख लें, आप जॉब देखें, आप ट्रेडिशनल बेस देखें, आप कोई भी नई फील्ड अपॉर्चुनिटी ऑप्ट करें, आपको उसके हिसाब से, बिकॉज इट इज अ न्यू प्लेटफॉर्म जहां पर आपको काम करना होता है सो दैट अपने गोल तक पहुंच सको। ठीक है, सो आपको उस फील्ड के हिसाब से चेंज होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर आप उस फील्ड के हिसाब से रेजिस्ट करें या उसको अवॉइड करेंगे कि नहीं मैंने चेंज नहीं होना, मैंने अपने तरीके से चीजों को फॉलो करना है, सो आप कभी भी उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के थ्रू कभी भी अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। एंड यही मैंने अक्सर मेजोरिटी लोगों को ये गलती करते हुए देखा है इन द बिजनेस। उनके ड्रीम्स भी होते हैं, ठीक है, सब कुछ होता है, फैमिली को भी सब कुछ देना है, अपने लिए भी बहुत कुछ करना है, बट द बिगेस्ट चैलेंज फॉर देम इज कि वो जो चेंज जो है ना, जो अक्सर हम बात करते हैं वेलकम में, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, जो हमने बात की होती है ना, पॉइंट ए से पॉइंट बी की जर्नी होती है, इट्स अ जर्नी ऑफ चेंज। सो वो चेंज की वजह से क्या होता है कि उसको रेजिस्ट करते रहते हैं, इवेंचुअली क्या होता है कि एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो इंटरेस्ट लूज हो जाता है। सो और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आपके अपलाइन आपको बता रहे हैं कि यार कि दिस इज समथिंग जो कि इम्पोर्टेंट है, जो आपको डेवलप करनी है, लेट्स से कंसिस्टेंट रहना है एक्टिविटीज में, ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है, सिस्टम अटेंड करने हैं, वीसल अटेंड करने हैं, ठीक है, ये एक्चुअली में चेंज नहीं आता अगर आप उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। तो वो जो छोटी छोटी चेंजेस हैं बिजनेस के हिसाब से, वो आप कभी भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड वंस आपको ये कल्चर डेवलप कर लिया, ठीक है, इस कल्चर में, ठीक है, आप जेलन हो गए तो आपको इस बेस में कोई भी नहीं रोक सकता। एंड इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, सो अक्सर मैंने मतलब हमने अपलाइन से सुना हुआ है, सीखा हुआ है कि इस बिजनेस में ना जो चीज रिटेन करती है आपको बिजनेस में, ठीक है, एक तो ऑब्वियसली आपके गोल होते हैं, आपके ड्रीम होते हैं, एंड थर्ड चीज होती है जो कल्चर होता है जिसमें आप प्लग्ड इन होते हो। कल्चर ये होता है कि आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आप उसके बारे में एक्साइटेड हो, उसके बारे में आपको हो कि यार कि ये वो चीज है जो कि मुझे लाइफ में लेके जा रही हो कहीं ना कहीं। सो जो कल्चर में आपने अक्सर देखा होगा पीओ का कल्चर होता है कि आपके दोस्त वगैरह उसको मतलब उसको पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उसको ज्वाइन कर रहे होते हैं, और अक्सर भी दोस्त होते हैं वो कभी कभार वैसी पीओ में आ जाते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं कल्चर वो एक्चुअली में बड़ा अच्छा लग रहा होता है। ठीक है, अपलाइन के साथ एसोसिएशन रखना, वो डेवलप्ड रखना, बिकॉज वो कहीं ना कहीं कल्चर में आता है, क्योंकि अपलाइन के साथ बात करके उनकी कंपनी को आप कहीं ना कहीं एडमायर कर रहे होते हो, उनसे आपको काफी एनर्जी मिल रही होती है। सो ये वंस आप अपना टारगेट सेट करते हो ना, तो फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए इस बिजनेस के हिसाब से आपको तमाम वो एक्टिविटीज, वो सारी की सारी चीजें फॉलो करना, उसमें कंसिस्टेंसी फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड वंस आप में कंसिस्टेंसी आ जाए, हमने अक्सर सुना होता है ना कि कंसिस्टेंसी इज द की, वो ऐसे नहीं है, उस पे वो जिसने भी वो स्टेटमेंट है, जिसने भी वो मतलब सेइंग रिलीज की है, पास ऑन की है, एक्चुअली में उसके पीछे उसका विजडम, उसका एक्सपीरियंस है, इसी बेसिस पे किए हुए है। सो हम सुनते तो हैं डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बट फॉलो नहीं करते, पता है, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। एंड विदाउट कंसिस्टेंसी, विदाउट डिसिप्लिन, ठीक है, चीजों को फॉलो करना, आपके जो भी ड्रीम है ऑनेस्टली बताऊं, आप कभी भी पूरे नहीं कर पाओगे। एंड यहाँ ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो जो डिसिप्लिन, वो लैक ऑफ डिसिप्लिन, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से आप चीजों को 100% फॉलो नहीं करते, इवेंचुअली वो रिजल्ट नहीं आता, और फिर आपके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चंस जनरेट होने लग जाते हैं, आप सेल्फ डाउट में चले जाते हो। ठीक है, आपकी डिमोटिवेटिंग एनर्जी जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है, बहुत ज्यादा बढ़ती रहती है, और एक टाइम आता है कि आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है, आप उस स्पीड में काम नहीं कर रहे होते। सो इसलिए, ठीक है, वंस आपको ड्रीम अलाइन हो गए, आपको पता है, ठीक है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई नो दिस फैक्ट कि प्रोबेबली मेजॉरिटी लोगों को, ठीक है, अपने ड्रीम का नहीं पता होगा, पता है क्या बिजनेस स्टार्ट क्यों कर रहे हैं। आपको सिर्फ वो 20 ड्रीम्स लगता होगा या कि ठीक है मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने घर लेना है, मैंने ये सब चीजें लेनी है, बट वो जो भी चीज लेनी है, ठीक है,